Good afternoon, students. This is Rachna Rai Sharma, Assistant Professor, Community Health Nursing in Metro College of Nursing. So today's topic, health clinics and health camp, is for BSc Nursing 4th year students. So we will discuss first about clinics, health clinics. So clinic setting is a place where family members come to seek medical and healthcare services as desired by them from the members of healthcare team, including physicians stationed there. बेसिकली कोई भी फैमिली मेम्बर है, कोई भी इंडिविजुअल है जिनको मेडिकल और हेल्थ केयर सर्विसेज की ज़रूरत होती है, दे कम, दे सीक दो सर्विसेज as desired by them, as needed by them from the members of healthcare team. Okay, then clinics are arranged at the following locations: sub center, primary health centers, community health center, hospital, slums, MCH and family welfare centers, schools and fair places. यहाँ जो है clinics हम सेटअप कर सकते हैं. Then reasons for clinic, किस लिए करते हैं? To offer care for people's felt need, to provide care for actual needs of people. Okay, to actually fulfill their needs and to offer care for the people who felt any need of healthcare services. Then types of clinic, there are three types of clinics. First is general clinic, second is separate clinic, and third is specialty clinic. We will discuss one by one. First is general clinic. Any person can be attended with any of the health problem. These are more convenient because all clients can be dealt with at the same time. Means all type of health problems can be attended here. So examples are pregnant mother, malnourished child, father having fever, grandmother having indigestion. They all together can attend the same clinic. In general clinics, all healthcare needs are met. An individual person can use the same visit to have all the health problems seen on one single occasion. For example, a mother needing antenatal checkup, and she is also having sore eyes, she is also having cut injury, and also she is requesting information about her child care. So one individual person, she can use the same visit for all her problems in one single occasion. Then separate clinics. Separate clinics, there are a number of separate clinics run on different days of the week. This system of clinic is used where access is very easy and clients number is very large. Okay, so according to the day, like one day, Monday is for antenatal clinic, Tuesday is for postnatal clinic, Wednesday is for under 5 clinic, Thursday is for family welfare clinic, Friday is for reproductive and child health clinic, and Saturdays for general health checkups, general problems. So these are categorized under these activities. Okay, separate clinics. Then it must be seen that community health nurse must not spend all the days in the clinic. It is useful to spend time for community healthcare activities. Clinic must be a part of community program so that the clinic can provide service to the needy people. Okay, हमेशा ये नहीं करना है कि जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है वो क्लिनिक में ही सारे डे स्पेंड करे. ठीक है, बेसिकली मान लीजिए एंटीनेटल डे वाले दिन वो चली गई है, बाकी दिन वो कम्युनिटी हेल्थ केयर एक्टिविटीज़ पे ध्यान दे ताकि उसे वहाँ से पता लग सके कि व्हाट इज़ द एक्चुअल नीड of the people, of the community people, so she can send them to the clinic. Then specialty clinic, these provide medical and counseling services for specific disorders, as the name itself suggesting that specialty clinic is for special categorized health needs. These clinics are run by specialist doctors and nurses. Some of the important clinics under this category includes TB clinic,
diabetes clinic, STDs clinic, nutrition clinic, cardiac clinic, chest clinic. Okay, location of the clinic, this is very important. The location is very important while you setting up a clinic in a particular community. So first is, clinic should be set up within the community or as near to the community as possible. No one should need to travel more than 1 hour of easy journey. Second, the location should be acceptable to all. And third, the clinic and waiting area must be safe for children. So these all things you should kept in mind while you are setting up of a clinic. Then criteria for a good clinic. What all are the criteria for a good clinic? First one is location. So clinic is located close to the community. The location should be acceptable and accessible. Second, the clinic should be well organized with effective flow pattern from one health station to another. Then third is provision for follow-up care and referral. It should provide follow-up care and referral also. And there should be effective system of recording and reporting for further use. Then there should be effective system of health education for people coming to the clinics. Then what are the functions of community health nurse in health clinics? First is setting up of clinic and arranging equipments and supplies. Second is placement of health worker at a particular service area and assigning responsibilities accordingly. This is administrative work. Then also managerial work. Then assessment of health status of the patient. Then providing need-based nursing care services according to the assessment. Then giving necessary instructions to patient and family members. उनको necessary instructions भी देनी है, health education भी देनी है. Then conducting health education sessions as needed. Then assisting the doctor or specialist in any healthcare service. Then supervision and guidance of health workers. Next, monitoring of health records and registers. उसको मॉनिटर भी करना है हेल्थ रिकॉर्ड और रजिस्टर्स को. देन मेंटेनिंग एंड प्रिजर्विंग द हेल्थ रिकॉर्ड्स, रजिस्टर्स एंड रिपोर्ट ऑफ द क्लिनिक सर्विसेज प्रोवाइडेड. जितनी भी जो क्लिनिक में हेल्थ सर्विसेज दी गई हैं उसको उनके हेल्थ रिकॉर्ड्स, रजिस्टर, रिपोर्ट्स को मेंटेन और प्रिजर्व करके भी रखने का काम है. देन हेल्पिंग इन प्रमोटिंग गुड वर्किंग एनवायरनमेंट एट द क्लिनिक. ओके, देन व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ MPHW फीमेल, multi-purpose health worker female? First is helps in setting up of clinic. Second, does registration of cases attending the clinic. Third is takes and records their weight if required. जो भी वहाँ पे केसेस आते हैं, जो भी क्लाइंट्स आते हैं, पेशेंट्स आते हैं, उनका वेट लेना और उसको रिकॉर्ड करना if required. Then does assessment of health status as per guidelines. Provides treatment and care based on needs as per standing order. Okay, give necessary instructions to patients and family members and participates in health education sessions. Okay, so that she can also improve her knowledge. So these are the functions of MPHW female. Then coming to health camps. Today hospital and NGOs organize health camps in order to increase preventive health awareness. It is also a good way to increase the brand equity and business, but organizing a medical health camp is not an easy task as it takes a lot of planning and management. आपने देखा होगा बहुत सारे जगह जो है गवर्नमेंट या NGOs या फिर रोटरी क्लब्स, लायन क्लब्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऑल्सो, ठीक है, they organize camps, health camps, free medical checkup, free health camps. Okay, so how do we do that? कैसे करते हैं? What all are the requirements? What are the protocols we need to follow? So we will discuss about it. So every medical camp must adhere strictly to the
local, professional and country specific laws and codes of conduct for the practice of medicine. You have to strictly adhere to these laws and codes of conduct. Then every proposed activity in the medical camps must be approved in advance by the regional medical director. So what are the goals to organize a health camp or medical camp? Medical camps are conducted to carry out health promotion, education, minor medical और सर्जिकल ट्रीटमेंट्स एंड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सर्विसेज. आपने देखा होगा कैटरेक्ट के हेल्थ कैंप्स लगते हैं, मेडिकल कैंप्स लगते हैं, कैटरेक्ट की सर्जरी होती है उनमें, ठीक है. और बाकी चीज़ों की जैसे बहुत टाइम पहले जो है ये आपके जो नसबंदी टाइप्स जो वो होते हैं उसके लिए जो हेल्थ कैंप्स लगे थे. तो ये डिफरेंट चीज़ों के लिए, डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए हेल्थ कैंप्स लगते हैं. तो इसमें आप हेल्थ प्रमोशन के लिए भी लगाते हैं, एजुकेशन के लिए भी लगाते हैं, माइनर मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट्स और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए भी जो है हेल्थ कैंप्स लगाते हैं. द सर्विसेज आर कैरीड आउट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हेल्प एवर हर्ट नेवर. Okay, and second is all the service activities at the camps are rendered free of charge to the attendees at the camp. These must be free of charge. Okay, then proposed activities. What are the proposed activities? What are the activities we propose in health camps or medical camps? First one is health education regarding diet, exercises, weight control, personal hygiene, immunization, smoking and alcohol cessation, stress and anger management and general cleanliness. हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं हम इन हेल्थ कैंप्स में रिगार्डिंग डाइट, एक्सरसाइज, वेट कंट्रोल, पर्सनल हाइजीन, इम्यूनाइजेशन, स्मोकिंग, अल्कोहल सीजेशन, स्ट्रेस एंड एंगर मैनेजमेंट एंड जनरल क्लीनलीनेस. प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग करते हैं. That may include body weight, height, body mass index, blood pressure, किसको hypertension या hypotension तो नहीं है उसके लिए स्क्रीनिंग. Then blood sugar, किसी को जो है डायबिटीज़ तो नहीं है. Then lipid profile, उसकी चेक करते हैं. कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन ज़्यादा तो नहीं है. ऑडियो विजुअल एंड फुल बॉडी स्क्रीनिंग भी करते हैं, ठीक है. बॉन मेमोग्राम्स, पैप स्मेयर्स, ये सारी स्क्रीनिंग, प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग हम इसमें हेल्थ कैंप्स में या मेडिकल कैंप्स में कर सकते हैं. देन वी कैन ऑल्सो प्रोवाइड ट्रेनिंग इन BLS, बेसिक लाइफ सेविंग स्किल्स सच एज फर्स्ट एड, बेसिक लाइफ सपोर्ट, CPR एंड डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस. इन मेडिकल कैंप्स या हेल्थ कैंप्स में हम ये ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करते हैं. देन बोन मैरो डोनर रजिस्ट्रेशन ड्राइव एंड ब्लड डोनेशन ड्राइव. ब्लड डोनेशन कैंप्स आपने देखे होंगे. या फिर बोन मैरो डोनर रजिस्ट्रेशन, ओनली रजिस्ट्रेशन हम उसमें करते हैं कैंप्स में, ठीक है, बोन मैरो का. तो ये चीज़ें भी इन प्रपोज्ड एक्टिविटीज़ में आती हैं. देन फिफ्थ इज़ माइनर मेडिकल ट्रीटमेंट और माइनर सर्जिकल प्रोसीजर्स may be carried out as per specific laws and codes of conduct for the practice of medicine. According to these laws and codes of conduct, we can also do some medical treatments and minor surgical procedures. Then at this point in time, only allopathic evidence based medical practice is allowed. In health camps or medical camps, only allopathic evidence based medical practice is allowed. You cannot practice or you cannot advise or you cannot give teaching of any alternative medicine, alternative system of medicine. These are not allowed. So, आयुष में जो की जितनी भी चीज़ें हैं वो हम इनमें नहीं इंक्लूड करते हैं हेल्थ कैंप्स में और मेडिकल कैंप्स में. Then what are the protocols we have to follow while organizing a camp? First is designation of an insured medical campsite under supervision of a licensed physician as the camp medical director. ठीक है, सबसे पहले तो हमने मेडिकल कैंप की साइट को डेजिग्नेट करना है. एक इंश्योर्ड मेडिकल
कैंप साइट किसके सुपरविज़न में होता है ये काम? किसी भी लाइसेंस्ड फिजिशियन जो कि कैंप का मेडिकल डायरेक्टर होगा, उसकी सुपरविज़न। सेकेंड इज डिटरमाइन द हेल्थ नीड्स थ्रू द लोकल पब्लिक हेल्थ एंड सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और अदर सोर्सेज एज इंडिकेटेड। अब आप कैंप तो ऑर्गेनाइज करने जा रहे हो, लेकिन आपको वहाँ की लोकल पब्लिक की जो हेल्थ नीड्स हैं वो भी पता होने चाहिए। उस कम्युनिटी की हेल्थ नीड्स क्या हैं, आप किस चीज़ का कैंप लगाएंगे, ठीक है। तो यू मस्ट डिटरमाइन द हेल्थ नीड्स थ्रू द लोकल पब्लिक हेल्थ और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स। लोकल जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट्स होते हैं या सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट होते हैं या कोई अदर सोर्सेस, कोई स्टडीज़ हुई हैं वहाँ पे, उसके थ्रू भी आप जो है डिटरमाइन कर सकते हैं वहाँ की हेल्थ नीड्स क्या हैं। थर्ड है comply with the local, state and federal laws pertaining to work related health hazards, waste disposal management, privacy of individuals health record in all camp activities। आपको ये सारे लॉज पता होने चाहिए, वहाँ के लोकल लॉज क्या हैं, स्टेट लॉज क्या हैं, फेडरल लॉज क्या हैं, किसके रिगार्डिंग, रिलेटेड टू हेल्थ हज़ार्ड, वेस्ट डिस्पोजल मैनेजमेंट, प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल्स हेल्थ रिकॉर्ड्स। जो भी कैंप में एक्टिविटीज़ होंगी उनसे ये इन चीज़ों से रिलेटेड जो है आपको लोकल, स्टेट और फेडरल लॉज जो है आपको कंप्लाई करने हैं, आपने जो है उनके साथ मैच करना है, ठीक है। देन नोटिफाई ए नियर बाय हॉस्पिटल इमरजेंसी रूम इन एडवांस इफ़ अवेलेबल। आसपास जो भी हॉस्पिटल है वहाँ के इमरजेंसी रूम को पहले ही नोटिफाई करना है एडवांस में कि अगर कोई इमरजेंसी हुई देन वी विल रश इनटू दैट हॉस्पिटल, ठीक है। उनको पहले ही पता नोटिफाई करके नोटिफिकेशन देनी है उनको इसके रिगार्डिंग। देन यूटिलाइज स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ए ब्रीफ डेमोग्राफिक शीट एंड ए कंसेंट फॉर्म। आपको जो जब हेल्थ कैंप या कोई मेडिकल कैंप लगाते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवाते हैं, ठीक है। तो दैट रजिस्ट्रेशन फॉर्म मस्ट बी स्टैंडर्डाइज्ड। उसमें एक ब्रीफ डेमोग्राफिक शीट, उसके बारे में जो पर्सनल डेमोग्राफिक डेटा है उसका वो भरेगा, वो छोटा होना चाहिए, और एक कंसेंट फॉर्म भी उसके साथ लगा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है एस्टैब्लिश ए मैकेनिज्म फॉर प्रॉपर फॉलोअप एंड केयर फॉर दोज who need further medical attention, referral to local free clinics or local community clinics is preferred. If none is available, then referral should be done to local clinics, hospital and physician. जब भी आप कोई कैंप लगाते हैं, मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, तो एक प्रॉपर फॉलोअप का जो है मैकेनिज़्म होना चाहिए, जो कि जैसे आपने जो है ट्रीटमेंट कर दिया, मान लिया कैटरेक्ट की सर्जरी हो गई, ठीक है, ओल्ड पीपल हैं उनकी कैटरेक्ट का कैंप लगाया है, उनकी सर्जरी हो गई, ठीक है। अब फॉलोअप के लिए वो कहाँ जाएंगे, बाद में कोई दिक्कत हुई या चेक कराना हुआ, ठीक है, तो वो कहाँ जाएंगे, या कुछ भी है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई इमरजेंसी होती है, फॉर एनी फर्दर मेडिकल अटेंशन, वे विल दे गो। Then you must have a proper follow-up mechanism for that. Referral to local free clinics, ठीक है, उनसे बात करके रखनी है लोकल फ्री क्लिनिक्स से और लोकल कम्युनिटी क्लिनिक्स से, ठीक है। और अगर वहाँ पे वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, लोकल फ्री क्लिनिक नहीं है, लोकल कम्युनिटी क्लिनिक नहीं है वहाँ पे, तो वहाँ पे जो कोई भी प्राइवेट जो लोकल क्लिनिक है, प्राइवेट हॉस्पिटल है या प्राइवेट फिजिशियंस हैं, उनसे भी ये बात करके रखनी है कि ऐसे ऐसे यहाँ पे मेडिकल कैंप होगा, और उसके बाद अगर कोई आता है देन यू मस्ट पे अटेंशन टू देम, ठीक है। यू मस्ट डू द नीडफुल टू द पेशेंट्स। देन नेक्स्ट इज कलेक्ट एंड मेंटेन क्लिनिकल डेटा विद डॉक्यूमेंटेशन ऑफ काउंसलिंग and proper referral in a safe place, ensuring confidentiality and easy access for follow-up if needed at a later date. उनका जो क्लिनिकल डेटा है वो सारा डॉक्यूमेंट करके रखना है, कलेक्ट करना है, ठीक है,
और मेंटेन करना है उनका क्लिनिकल डेटा, जो भी आप हिस्ट्री लेते हो, जो भी आपका जो है जो इन्वेस्टिगेशंस कराए हैं, जो भी आपने ट्रीटमेंट दिया है, वो सारे डॉक्यूमेंटेशन आपने मेंटेन करके रखने हैं, कलेक्ट करके रखने हैं, सेफ हैंडलिंग होनी चाहिए उसकी, ताकि आप उनकी आगे अगर ज़रूरत होती है तो काउंसलिंग हो सके, काउंसलिंग पर्पस से, एंड प्रॉपर रेफरल उनकी हम करा सकें। ठीक है, प्रॉपर रेफरल किसी भी सेफ प्लेस पे, ensuring confidentiality and easy access for follow-up if needed at a later date। अगर कभी ज़रूरत पड़ती है कभी बाद में, तो वो जो है easily available हो वो डेटा follow-up के लिए। So this data should be kept by the camp medical director for a minimum of 5 years, who is responsible for that data during the 5-year period। ठीक है, जब भी कोई कैंप लगता है तो वहाँ का जो मेडिकल डायरेक्टर है, कैंप मेडिकल डायरेक्टर है, ही और शी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेटा फॉर 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच द कैंप इज़ ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, देन नेक्स्ट है फिल्मिंग द मेडिकल कैंप्स विद वीडियो and still photography should only be done by a designated film crew appointed and approved by the camp medical director. In all cases, filming and photography permission is required, preferably in writing from the local authority in charge or concerned attendees। ठीक है, कोई भी वीडियो या स्टिल फोटोग्राफी करनी है तो इसके लिए कोई भी डेजिग्नेटेड फिल्म क्रू अपॉइंट करना है। ठीक है, जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं वही जो है अपॉइंट करना होता है उसके लिए। मेडिकल कैंप की अगर कोई भी वीडियो या स्टिल फोटोग्राफी होती है, और ये कौन अप्रूव करता है, इसको कौन अपॉइंट करता है और कौन अप्रूव करता है, कैंप मेडिकल डायरेक्टर। और इसकी परमिशन कहाँ से राइटिंग में लेनी होती है, रिटन फॉर्म में लेनी होती है, फ्रॉम द लोकल अथॉरिटी इन चार्ज और कंसर्न्ड अटेंडीज़। ठीक है, जो अटेंड करने आ रहे हैं कैंप को, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो क्लाइंट्स हैं उनसे और लोकल अथॉरिटी इंचार्ज से राइटिंग में परमिशन लोगे आप, उसके बाद ही वीडियो और स्टिल फोटोग्राफी आप कर सकते हैं। और ये अपॉइंट कौन करता है, उस प्रोफेशनल फिल्म क्रू को अपॉइंट और अप्रूव करता है कैंप मेडिकल डायरेक्टर। देन ऑल लाइसेंस्ड मेडिकल प्रोफेशनल्स such as doctors, nurses, laboratory and radiology technician, etc. should have current professional license valid and accepted in the region where the camp is held। तो जो भी मेडिकल प्रोफेशनल इसमें जो काम कर रहे हैं, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स, उनका जो लाइसेंस है, प्रोफेशनल लाइसेंस है, वो करंटली जो है वैलिड होना चाहिए और एक्सेप्टेड होना चाहिए उस पर्टिकुलर रीजन में, उस पर्टिकुलर स्टेट में, या पर्टिकुलर जो भी अगर उनका स्टेट वाइज होता है तो स्टेट वाइज जो है वैलिड और एक्सेप्टेड होना चाहिए जहाँ भी कैंप हो रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है सम कंट्रीज़ में रिक्वायर लोकल टेम्पररी रजिस्ट्रेशन इन मेडिकल काउंसिल in their state or region to tender even good Samaritan services। ठीक है, this should be complied with if required। Alternatively, other forms of special permissions or waivers through local government organizations may be obtained for doctors to work in these camps। ये जो है कुछ कंट्रीज़ होती हैं उनमें ये ज़रूरी होता है कि लोकल टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है स्टेट मेडिकल काउंसिल में या रीजन मेडिकल काउंसिल में, ताकि वो गुड समैरिटन सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। गुड समैरिटन लॉ यू ऑल नो, ठीक है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ कंट्रीज़ में ये रिक्वायर्ड होता है ताकि जो है गुड समैरिटन सर्विसेज वो ईज़िली जो है प्रोवाइड कर सकें। दिस शुड बी कंप्लाइड विद इफ़ रिक्वायर्ड। ये जो है अगर कुछ भी इसके लिए कोई और भी परमिशन या कोई स्पेशल परमिशन चाहिए तो वो भी जो है
पूरी करनी होती है, वो भी लेनी होती है। ऑल्टरनेटिवली अगर कोई और इसके अलावा कुछ और जो है लोकल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से कुछ स्पेशल परमिशंस चाहिए या ठीक है, तो उसको भी जो है ऑब्टेन करना होता है, ताकि इजीली विदाउट एनी प्रॉब्लम डॉक्टर्स और अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इन कैंप्स में काम कर सकें। फिर है informed consents must be obtained and filed if required by the laws of the land। जो वहाँ जिस भी ज़मीन पर आप जो है हेल्थ कैंप लगा रहे हैं, वहाँ से अगर कोई ज़रूरत है किसी इन्फॉर्म्ड कंसेंट की, तो वो जो है साइन करा के रखना है, ठीक है, एज़ पर द लॉज ऑफ द लैंड, ठीक है। उसके बाद है रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ कैंप मेडिकल डायरेक्टर। मेडिकल डायरेक्टर का जो होता है कैंप का, उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सबसे पहले तो नोटिफाई करना रीजनल या जोनल मेडिकल डायरेक्टर ऑफ द रीजन, जो यहाँ पर्टिकुलर रीजन में जिस भी कम्युनिटी में आप जो है हेल्थ कैंप लगाने जा रहे हैं, तो वहाँ के मेडिकल डायरेक्टर को नोटिफाई करना कि कहाँ पे कैंप लगेगा। ए मिनिमम ऑफ 8 वीक्स इन एडवांस ऑफ द कैंप, कम से कम 8 हफ्ते पहले नोटिफाई कराना कि कहाँ कैंप लगा रहे हैं हम, जहाँ भी कहीं कैंप लगा रहे हैं वहाँ के मेडिकल ऑफिसर, रीजनल मेडिकल ऑफिसर को। ये काम है कैंप मेडिकल डायरेक्टर का। दूसरा काम है फैसिलिटेट रिक्रूटमेंट्स ऑफ रिक्वायर्ड फिजिशियन एंड एंसिलरी पर्सनल्स। जो भी रिक्वायर्ड फिजिशियन है वहाँ पे, डॉक्टर्स और जो भी अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, उनको उनका रिक्रूटमेंट कराना, ये काम है कैंप मेडिकल डायरेक्टर का। थर्ड है एश्योर दैट ऑल पार्टिसिपेटिंग फिजिशियन एंड अदर वॉलंटियर्स आर नॉलेजेबल अबाउट द गाइडलाइंस ऑफ फॉर मेडिकल कैंप कंडक्टेड। ये अश्योर करना कि जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, चाहे वो डॉक्टर है या नर्सेस है, नर्सिंग स्टाफ है, या फिर बाकी जो है टेक्नीशियंस हैं, कोई भी है, चाहे वॉलंटियर्स हैं, उनको गाइडलाइंस के बारे में, मेडिकल कैंप की जो गाइडलाइंस है उसके बारे में नॉलेज है या नहीं है, ये अश्योर करना। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑर्गेनाइजिंग, सुपरवाइजिंग एंड इंश्योरिंग प्रॉपर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, फ्री और लो कॉस्ट फॉलोअप्स एंड एडुकेट कंप्लायंस विद लोकल, स्टेट एंड फेडरल लॉज, ठीक है। वो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, कोई भी इमरजेंसी में कहाँ कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग, सुपरवाइजिंग एंड इंश्योरिंग प्रॉपर इमरजेंसी कांटेक्ट, ये ऑर्गेनाइज करना, सुपरवाइज करना और इंश्योर करना कि इमरजेंसी में कहाँ कांटेक्ट किया जाएगा। फॉलोअप के लिए जो फ्री सर्विसेज है, फ्री क्लिनिक्स, फ्री हेल्थ क्लिनिक्स, फ्री कम्युनिटी क्लिनिक्स, उनके साथ जो है कंप्लाई करना, लाइन अप करना। या कोई लो कॉस्ट फॉलोअप है, अगर वहाँ पे मान लीजिए फ्री क्लिनिक अवेलेबल नहीं है, तो कोई लो कॉस्ट प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, उसके लिए फॉलोअप के लिए जो है उनके साथ लाइन अप करना। एंड एडुकेट कंप्लायंस विद लोकल, स्टेट एंड फेडरल लॉज, वहाँ के जो लोकल, स्टेट और फेडरल लॉज हैं उनके साथ जो है कंप्लाई करना। ये कैंप मेडिकल डायरेक्टर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। Then verify that all healthcare providers have an active license to practice। उसको ये वेरीफाई करना है, सबके जो है लाइसेंस वेरिफिकेशन का काम जो है मेडिकल डायरेक्टर ऑफ कैंप उसका होता है। कोई भी, चाहे डॉक्टर्स है, नर्सेस है, लेबोरेटरी स्टाफ है, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन है, कोई भी है चाहे वो, ठीक है, उन हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लाइसेंस को वेरीफाई करने का काम होगा। देन इफ़ द लोकल अथॉरिटीज़ require professional liability insurance, please ensure the healthcare providers comply with all such regulations। कोई भी अगर professional liability insurance अगर कोई local authority को ज़रूरत है, ठीक है, तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स उन सभी रूल्स और रेगुलेशंस के साथ जो है कंप्लाई करेंगे। ये इंश्योर करना है कि जो भी जो लॉज हैं, जो भी रूल्स रेगुलेशंस लोकल अथॉरिटीज़ ने बनाए हैं, उनके साथ कंप्लाई करें वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। देन वेरीफाई और ऑब्टेन and retain electronic copy of all the required documents from the healthcare providers as per the laws of the land, ठीक है।
एज़ पर द लॉज ऑफ लैंड, कोई भी अगर कोई भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई भी परमिशन लेटर है, कुछ भी है, तो उसकी जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉपी वेरीफाई करना, ऑब्टेन करना और रिटेन करके रखना, ठीक है, ये काम है कैंप मेडिकल डायरेक्टर का। उसके बाद है मस्ट अश्योर जनरल लायबिलिटी इंश्योरेंस फॉर द डेट एंड लोकेशन ऑफ द कैंप। उसको क्या करना है, जनरल लायबिलिटी इंश्योरेंस अश्योर करना है डेट और लोकेशन के लिए, ठीक है, कि कोई भी परमिशन है, कोई भी इंश्योरेंस रिलेटेड जो है लॉज है, ठीक है, रेगुलेशंस हैं, तो वो इस चीज़ को अश्योर करेगा कि ये कब लगाना है हमने, लोकेशन क्या है हमारी, ठीक है, ज़मीन से लेके और डेट को लेके, ठीक है, ये श्योरिटी जो है कैंप मेडिकल डायरेक्टर इस चीज़ की श्योरिटी करेगा, ठीक है। उसके बाद है कैंप मेडिकल डायरेक्टर मस्ट अचीव फॉर एटलीस्ट 5 years द मेडिकल रिकॉर्ड्स ऑफ पेशेंट सीन इन द कैंप्स। 5 साल तक, जिस दिन कैंप लगा है उस डेट से लेके 5 साल तक पेशेंट्स के, जो भी पेशेंट्स जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया मेडिकल कैंप में, उनके मेडिकल रिकॉर्ड्स को संभाल के रखना, अचीव करके रखना, ये काम होता है कैंप मेडिकल डायरेक्टर का। ही और शी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। Then summary report for camp must be sent to the regional, national, zonal medical directors within 1 week of conclusion of medical camp. इसकी एक कैंप जब भी ऑर्गेनाइज करते हैं तो एक समरी रिपोर्ट बनती है पूरी एक्टिविटीज़ की, फ्रॉम प्लानिंग ऑब्जेक्टिव से लेके प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, देन पूरा जो है एक रिपोर्ट तैयार होती है और ये किसको भेजी जाती है विदिन 1 week। मेडिकल कैंप के ख़त्म होने के 1 week के अंदर रीजनल, नेशनल और जोनल मेडिकल डायरेक्टर्स को ये रिपोर्ट भेजी जाती है। देन अबव समरी रिपोर्ट ऑफ द मेडिकल कैंप शैल इंक्लूड, इस समरी रिपोर्ट में क्या क्या होगा, डेट एंड लोकेशन ऑफ मेडिकल कैंप, सर्विसेज प्रोवाइडेड, टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स सीन, टोटल नंबर ऑफ मेडिकल डॉक्टर्स एंड अदर मेडिकल प्रोफेशनल्स, टोटल नंबर ऑफ नॉन मेडिकल वॉलंटियर्स, फिजिशियन इन चार्ज ऑफ मेडिकल कैंप, शॉर्ट नैरेटिव समरी इन एडिशन टू अबव स्टैटिस्टिक्स, कि कितने कौन से पेशेंट कितने आए, ठीक है, क्या प्रॉब्लम आई, एक शॉर्ट नैरेटिव समरी होगी। देन पिक्चर्स ऑफ द सर्विसेज बीइंग परफॉर्म्ड इफ़ पॉसिबल, कोई भी अगर पिक्चर्स आपने क्लिक करी हैं तो वो भी आप साथ में लगाएंगे उसके। उसके बाद है रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स इन कैंप्स, क्या क्या रोल होते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्स के कैंप में। पहला तो एस्टैब्लिश करना हेल्थ कैंप को, उसके सारे जो इक्विपमेंट्स और सप्लाइज़ हैं वो ऑर्गेनाइज करना। देन स्टाफ ओरिएंटेशन, कोई भी जो स्टाफ है नर्सिंग स्टाफ के अलावा कोई भी टेक्नीशियन है उनका सबका ओरिएंटेशन कराना। देन ट्रेनिंग कैंप और रिट्रीट स्टाफ टू रिकॉग्नाइज मेडिकल इश्यूज, ट्रेनिंग कैंप और जो रिट्रीट स्टाफ है उनको मेडिकल इश्यूज से रिकॉग्नाइज कराना। प्रोवाइडिंग क्लीन फर्स्ट एड सप्लाइज, ठीक है, मैनेजिंग कम्युनिकेबल डिजीजेस इफ़ एनी, creating action plans in the event of an contagious outbreak, उसका कोई एक्शन प्लान क्रिएट करना अगर contagious आउटब्रेक हो जाता है in between the event. Then dispensing medications, attending minor injuries, communicating with the parents or family members of the camp or retreat attendants. Then frequent health checkups, ensuring the safety of everyone at a retreat or camp, accompanying the sick to medical appointments or hospital, then keeping accurate medical records, then participating in camp and retreat events, liaising with medical professional, then providing specific health needs of campers to staff members. So this is all about health clinics and health camps. So I hope you will understand this topic. Thank you.